what is saying in the question. See, charge q of mass m revolve around a point charge q due to electrostatic attraction, so that its time period of motion is given by t square is equal to 16 pi cube epsilon naught m r cube upon capital Q into Q, where capital Q is the charge which is revolving around this small q charge. Okay, so basically they are revolving because of electrostatic force of attraction. In chapter nucleus, you will came to know about Bohr's postulate. So this is one of the Bohr postulate, that electron revolve around the nucleus in circular orbit. Okay, so we'll not go in that topic. So basically we have to find out time period of motion. Okay, so let's solve this question. So solution. So what is time period basically? So time period is basically time taken by the particle to complete one revolution. Okay, so we know the formula. See, since velocity is equal to distance upon time, therefore I can write time is equal to distance upon velocity. Okay, now this time is time period which is taken by the particle to taken by the charge whose mass is capital M to complete one revolution. अच्छा, एक revolution अगर ये complete कर लेगा, so how much distance it will cover? Radius is given, that is nothing but circumference of that circular orbit. So 2 pi and r upon v. This is what time period. So I can write again t is equal to 2 pi r upon v. Here I can write. Now what is v? V is what? Velocity. So which velocity is this one? So see, particle is revolving in circular orbit, and to revolve in circular orbit, most important force is required. It's called centripetal force, and that force is given by the formula F is equal to mv square by r, where m is the mass of this charge q, okay, which is given, and v is the velocity of revolution, and r is the radius. Now what is this force? This force is electrostatic force. This electrostatic force, since particles are this particle q is revolving in circular orbit because of electrostatic force of attraction, and that electrostatic force of attraction provide necessary centripetal force. इसको सर्कल में घूमने के लिए centripetal force, वो electrostatic force जो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में लगेगा वो प्रोवाइड करेगा. So it means by using Coulomb's law, this force I can write 1 upon 4 pi epsilon naught q into small q, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय r square. R is here radius, capital R square is equal to mv square by r. This is what centripetal force. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F centripetal, right? Centripetal force. So this R will get cancelled. So what you will get basically? So मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. So you will get, so v square you can find out. V square is equal to q into q upon four pi epsilon naught r into m mass. This is what? V square. Okay, so basically now substitute this value. Okay, so basically I can write, so v is equal to what? So v is equal to, you will get under root q upon 4 pi epsilon naught r into m. Now substitute this value of v here. Here you have to substitute. So what you will get? So I am writing here. So therefore T is equal to 2 pi r upon under root q
into q divided by 4 pi epsilon naught r into m. This is what our equation. Now we have to remove this sign. So what we can do, we can square both the sides. So on squaring both the sides, so t square is equal to 4 pi square r square divided by q into q divided by रूट साइन हट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m. ये पूरा टर्म जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और एक पहले से 4 है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख रहा हूँ. तो 16 और पाई पहले 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू m. देखो पूरा ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा q इंटू q. दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन विच वी needed, which is asked in the question. 16 pi cube epsilon naught mr cube. So we are going to 16 pi cube epsilon naught mr cube divided by q into. So this is what your answer solution. This in this way you can solve. Now we'll go for question number 2. What is question number 2? Two balls A and B of the same mass capital M and charge q and minus q are suspended by two strings of same length from two different suspension points S1 and S2. If S1 S2 is equal to 3x and AB is equal to x, which is shown in the diagram, so then show that tension in the string is T is equal to q square L upon 4 pi epsilon naught x cube and tan theta is equal to q square upon 4 pi epsilon naught x square mg. This is what we want to find out. So here it is diagram is given. दो बॉल है, एक बॉल ये एक थ्रेड से ऐसा लटका है और ये एक सस्पेंशन है S1 S2 एंड और इसका लेंथ L आपको दिया हुआ है. ओके और दोनों बॉल जो है सी फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट यहाँ पर जो दोनों बॉल होंगे, लेट मी मेक दैट बॉल, ये एंड दिस वन, दोनों अनलाइक चार्ज बॉल होंगे. ओके अनलाइक पोलैरिटी के चार्ज में से एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव होगा. देयरफॉर दे आर अट्रैक्टिंग. यहाँ पर दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है. ओके नाउ अगर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मतलब जब भी दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं एग्जर्ट कर रहे होंगे तो ऐसा वाला ये जो बॉल ए ऐसे सस्पेंशन रहा होगा इसका. ओके बट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर दोनों चार्ज में फोर्स लग रहा है, ये ऐसे हो गया. तो ये इतने एंगल से, अगर ये एंगल थीटा वन था, इतने एंगल से ये क्या वो सस्पेंशन एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ. तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो. यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा. ओके नाउ विल सॉल्व इट. ना अभी देखो टेंशन किस तरफ होगा, टेंशन हमेशा ओरिजिन की तरफ होता है, जहाँ से थ्रेड लटकाया हुआ है तो ये टेंशन इधर होगा. और दूसरा आपका जो टेंशन होगा वो इस स्ट्रिंग पर इस तरफ होगा. ओके और ये बॉल का मास भी आपको दिया हुआ है, तो इसका जो वेट होगा ये mg नीचे की तरफ होगा एंड इसका भी वेट क्या होगा mg नीचे की तरफ होगा. तो अगर यहाँ पर टेंशन को ध्यान से देखो तो टेंशन ना कंप्लीट वर्टिकल है ना कंप्लीट हॉरिजॉन्टल है. तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमको. रिजॉल्व टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे हम लोग. देन विल सी व्हाट वी आर गेटिंग. तो नाउ सी इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ सो दैट कुछ प्रॉब्लम ना हो. नाउ सी जब इसको रिजॉल्व करोगे, कैसे रिजॉल्व करोगे, एक कंपोनेंट इसका ये होगा और एक कंपोनेंट इसका ये होगा. दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया. अब अगर एंगल थीटा ये है, एंगल थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा टी साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा. एडजेसेंट साइड से आ रहा था कॉस थीटा और ये अपोजिट, देखो साइन थीटा जब लिखोगे तो अपोजिट ये साइड नथिंग बट ये साइड, और आपको ये एक्स दिया हुआ है तो ये भी एक्स ही होगा.
ओके नाउ अब ये तो हो गया आपका इस तरफ टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, ऐसे इधर भी होगा, तो मैं एक के लिए लिख रहा हूँ, दूसरे के लिए वही चीज होगा। नाउ सी, अब इन दोनों दोनों बॉल के बीच में, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ होगा दोनों के बीच में, ये ऐसे अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ पर दोनों बॉल इक्विलिब्रियम पे, मतलब ना ये बॉल अब इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ना ये बॉल इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इट मीन्स बोथ द बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम। एंड ये इक्विलिब्रियम किस चीज़ की वजह से अचीव हुआ है बेसिकली, तो इन ये जो आपका फोर्स है, ये एफ फोर्स है, ये फोर्स टी साइन थीटा इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशन लिख सकते हैं। सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स लग रहा है फोर्स लिख देता हूँ, और ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स कोलम्बियन फोर्स होगा ना, कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं कोलम्ब फोर्स के टर्म में लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच में चार्ज q है, चार्ज दोनों सेम है, तो q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आर दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है x है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल टू FC है। सो यहाँ पर आपको x स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, नाउ देयरफॉर अब देखो cos थीटा t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, वेट को, दैट इज mg को। So suppose this is equation 1 and equation 2. Now from equation 1 only, केवल equation 1 को देख लो, from equation 1 t sin theta is equal to q square upon 4 pi epsilon naught x square, which implies that t is equal to q square upon 4 pi epsilon naught एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ना साइन थीटा को इस एंगल में देखो, दिस साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, सो दिस साइड नथिंग बट आपका ये एक्स हो जाएगा। सो बेसिकली आई कैन राइट हियर टी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट आपका एक्स है, तो x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस लेंथ है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, यही तो पूछा था शायद, ये देखो क्यू स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन है टेन थीटा कैसे पता किया जाए। यहाँ पे जो दूसरा पूछा है वो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। तो टेन थीटा को देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 टी साइन थीटा आ रहा है, इक्वेशन 2 टी कॉस थीटा आ रहा है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो अगर मैं इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूँ, डिवाइडिंग 1/2, तो देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू, टी साइन थीटा क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, so 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड टी कॉस थीटा क्या था, इसका मास, इसका वेट सॉरी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, इतना तो ज्योमेट्री हमको आता ही है। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये मास एम जी, यही तो पूछा था। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। T sin theta, yes, this is what 4 pi epsilon naught x square mg, 4 pi epsilon naught x square mg, this is what required equation. So question number 2 is solved. Okay, in case any doubt you can comment, so I'll make another video. Now we'll go for question number 3. Question number 3, a point charge q is placed at point A00, मीन्स यहाँ पर अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर मैं इसको
पॉइंट ए ले लेता हूँ मैं इसको, एंड दिस इज व्हाट 0 0। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एक्स वाई इन वेक्टर फॉर्म पूछा है, वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स। सो वेक्टर फॉर्म में चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q अपॉन r square, r is the basically distance into r cap. What is r cap? R cap is the r cap is the unit vector. Okay, directed from a to b, a to b आपको डायरेक्टेड किया है। अब यूनिट वेक्टर का यहाँ पर पूरा खेल है। बेसिकली व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, सपोज आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर लेता हूँ, तो अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें एक मैग्नीट्यूड है इसका, और दूसरा इसका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं इसको आर लिखूंगा विद मॉड साइन, और इसको मैं यूनिट वेक्टर को आर कैप मैंने बोल दिया ए से बी की तरफ होगा। अच्छा, इट मीन्स यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ओके, सो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इन वेक्टर फॉर्म। चलो इसको 1/4πε को के लिख देता हूँ, कांस्टेंट है ये, के क्यू इंटू आर कैप क्या है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, ये आर स्क्वायर पहले से ही है, और ये भी आर जब आप लिखोगे डिवाइड तो नीचे आ जाएगा, तो ये आर क्यूब हो जाएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सिंपली। ओके, अब हम लोग को आर वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड हम लोग लिखना है। अब आर वेक्टर हम लोग देख लेते क्या होता है। तो आर वेक्टर बेसिकली देखो ये 2 डायमेंशनल चीज है। ओके, देखिए आपका डायग्राम, आपका देखो डायग्राम ये 2 डायमेंशनल है। तो आर वेक्टर आपका जो है वो आप जब एक्स एक्सिस पर इतना जाओगे और वाई पर इतना जाओगे, तब वहां पर उस पॉइंट पर पहुंचोगे आप। तो ये आर को मैं ऐसे एक्स आई कैप, और इसको मैं वाई जे कैप, ये पॉइंट को ये आपका क्या, ये क्या हो जाएगा एक्स आई कैप, जब वाई जे कैप। तो इसका मतलब मैं आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आर वेक्टर जो आपका होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में कैसे देख सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आर है, ये 90 डिग्री बन गया, और ये आपका जो है आपका वाई है ये, और ये आपका एक्स है। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस पर इतना दूर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बाई पाइथागोरस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू एक्स रूट साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर मैं आर क्यूब, देखो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर क्यूब है। ओके, तो मैं आर क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ? तो आर क्यूब कैन बी रिटन एज आर इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो कहने का मतलब है आर आपका जो है, आपका आर कितना है, तो ये आपका आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, देखो यहाँ पर, और ये आर बचा ये वाला आर, तो ये आर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 से लिख सकते हैं। मीन्स आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा। तो ये आर क्यूब का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। तो देयरफॉर ई आपको क्या मिलेगा आपको वेक्टर फॉर्म में, के क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2. This is what your equation in vector form. Okay, so this was the required equation. वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना होता है। यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये भी वेक्टर फॉर्म में करेक्ट है। ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, लेकिन ये एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिख दिया है।
ओके, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. ओके, देखते हैं, चलो पढ़ते हैं क्या है इसमें. An oil drop of mass m is found floating freely between the plate of a parallel plate condenser. ओके ठीक है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, कोई बात नहीं. अच्छा, the plate being horizontal and lower plate carrying charge plus q and charge on upper plate is minus q. The area of each plate is a and distance of separation between them is d. Calculate the charge on each drop, sorry on oil drop. ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कैलकुलेट करना है. तो ओके चलो पहले डायग्राम बना देता हूँ आपको, तो आपको पूरा समझेगा क्या करना है इसमें. तो दो प्लेट है, तो दो प्लेट चलो बना देते हैं. एक प्लेट ये है और एक प्लेट मेरा ये है. अब दोनों का एरिया ए है. एरिया ए देखो दिया ना यहाँ पर, एरिया ए. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोअर प्लेट बीइंग हॉरिजॉन्टल एंड द लोअर प्लेट कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू. तो ये आपका जो है प्लस क्यू चार्ज इस पर है. पूरा चार्ज मिलाकर कितना है? प्लस क्यू. चलो प्लस क्यू बना देते हैं. और अपर चार्ज माइनस क्यू है. एंड अपर प्लेट इज माइनस क्यू. ओके, तो ये आपका हो गया माइनस क्यू. अच्छा, इसके बीच में ना ऑयल ड्रॉप है जो कि फ्लोट कर रहा है. फ्लोट कर रहा है मीन्स देखो यहाँ पर क्या दिया है, ऑयल ड्रॉप मास फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट. ओके, तो बेसिकली वो जो है ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है और वो फ्लोट कर रहा है उसी बीच में. ओके, तो इसमें जो है फिर आपको एरिया वगैरह दिया है. तो सपोज देखो अभी यहाँ पर जो है मास दिया आपको ऑयल ड्रॉप का, तो मास का ऑब्वियसली ग्रेविटी काम करेगा. तो ग्रेविटी आपका जो है इसे मास, ये जो वेट होगा, ओके, ये नीचे की तरफ आना चाहेगा. तो चलो मास है इसका mg, वेट इसका. ओके, लेकिन ये चार्ज ऑब्वियसली फोर्स फील कर रहा है जिसकी वजह से वो ऊपर बैलेंस है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है. तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. ओके, तो इस दोनों वेक्टर से और चार्ज चूंकि इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब जो ये W = mg वाला फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और ये फोर्स दोनों बैलेंस है. तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, जो फोर्स लग रहा है चार्ज पर, और चार्ज है ऑयल पे, चार्ज है कुछ ना कुछ. तो ये Q सपोज चार्ज है, चार्ज कितना मान लो Q है, तो QE = mg, ऐसे लिख सकता हूँ. अच्छा, तो आपको ये दे देगा आपको क्या, तो आपको ये Q और E का वैल्यू क्या दिया आपको, E का वैल्यू आपको दिया है Q अपॉन ए एप्सिलॉन, देखो ऊपर ही लिखा है. तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg. तो आपको पूछा चार्ज कितना है, तो चार्ज आप सिंपली देखो 2-3 लाइन में आपका इक्वेशन आ गया. तो mg ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q, इतना जो है आपका चार्ज है ऑयल ड्रॉप पर. अच्छा, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको कि सर कि ये जो यहाँ पर एरिया ऑफ ईच प्लेट ए दिया है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज डी दिया है. ओके, तो स्टूडेंट्स, तो एक और फॉर्मूला इसमें लगता है. एक और फॉर्मूला ये कि जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो V/d भी होता है. तो पोटेंशियल के टर्म में, बीच पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के टर्म में भी आप इक्वेशन ला सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिखता हूँ. तो आप Q देखो, ये वाला Q और E की जगह पर मैं V/d लिख देता हूँ इज इक्वल टू mg. तो Q आपको मिल जाएगा ना, D मतलब कितना डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में, देखो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना D है, और ये mg अपॉन पोटेंशियल, ये भी आपका चार्ज. दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 4. तो कितना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कितना शॉर्ट में आंसर आ गया इसका. ओके, बस वेक्टर का यूज है इसमें, सब वेक्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. ओके, नेक्स्ट question is given 3 charges minus √2 microcoulomb, 2 √2 microcoulomb and minus 2 √2
minus root 2 microcoulomb are arranged along a straight line as shown in the figure. Calculate total electric field intensity due to all three charges at point P. देखो यहाँ पर ये माइनस रूट टू माइक्रोकुलम चार्ज, एक यहाँ पर 2 रूट 2 माइक्रोकुलम चार्ज और यहाँ पर ये। तो अगर मैं देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, तो एक चीज आप ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है ना, ये जो है टेस्ट चार्ज को लेकर डिफाइन किया गया है। तो हर जगह आप टेस्ट चार्ज को आप जो है लेके चलना है। तो कैसे लेके चलना है, सपोज यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है, इस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इस पॉइंट पर मान लो कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब देखो, अब टेस्ट चार्ज है तो ये वाला जो चार्ज होगा 2 रूट 2 माइक्रोकुलम, ये इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज यहाँ पे हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है और ये जो है ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। तो जो फोर्स रहेगा, जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, ये इस तरफ होगा। ओके, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, और ये इसको मैं नाम देता हूँ बी, और इसको मैं नाम देता हूँ सी। अब देखो यहाँ पर ये 1 मीटर दिया है, ए से बी के बीच में 1 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी से सी भी 1 मीटर दिया हुआ है। ओके ठीक है, तो मैं अब देखो ये बी से पी, पॉइंट पी भी 1 मीटर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁹ एंड क्यू का वैल्यू कितना है? 2 रूट 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकूलम में आपको लिखा है। और आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर आपका जो है 1 मीटर। ये पॉइंट बी से इस पॉइंट पी तक जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब वही होगा। तो बेसिकली 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 रूट 2, 9 टू जा 18 रूट 2 10⁻⁹ और 10⁻⁻6, ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से। अच्छा, मेन चीज़ क्या है अभी यहाँ पर? अब देखो ये वाले फोर्स के पता कर लेते हैं। जब आप इन दोनों इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे, तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिस्टेंस की ज़रूरत, थोड़ा मेरा डायग्राम गलत हो गया, लेट मी रिमूव इट, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते। देखो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमको, और जब आप इस चार्ज पर लिखोगे तो इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले वो डिस्टेंस पता कर लेते हैं। अब तो डिस्टेंस पता कैसे करेंगे, आपको आइडिया आ गया होगा दिमाग में ये डायग्राम ही देखकर। अब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो पाइथागोरस लगा दो, 90 डिग्री है। तो चलो मैं ए पी इज इक्वल टू पी सी, दोनों बराबर ही होंगे। क्या हो जाएंगे? रूट 1 स्क्वायर, देखो ये 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। 1 स्क्वायर को 1 प्लस 1 √2 हो जाएगा, राइट। तो आपका जो है AP हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और ये माइनस चार्ज है। अब आपको फिर से अज्यूम करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से पॉइंट ए पर -√2 जो चार्ज है, इसकी वजह से ये जो टेस्ट चार्ज होगा वो अट्रैक्शन फील करेगा इस तरफ। तो देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये सॉरी, तो ये आप ऐसे रिजॉल्व करोगे, और आप फिर ऐसे रिजॉल्व करोगे, यही ऐसे रिजॉल्व होगा। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है, ओके, अगर अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल थीटा लेता हूँ, सपोज अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, मतलब आपको इसको मैं लिख देता हूँ, ये ई ए कॉस थीटा।
और डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। और जब आप इसको अब रिजॉल्व देखो, अभी ये भी -2 चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर, तो ये भी अट्रैक्शन फील करेगा इस तरफ, तो इसी तरफ डायरेक्शन होगा, इसी तरफ भागने की कोशिश करेगा ये। तो अब देखो इसको रिजॉल्व करोगे ऐसे और ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा, और ई ए और सॉरी ये आपका ई है, ये भी आपका ई है। और ये जब दूसरा कंपोनेंट जो आपने रिजॉल्व किया, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ब्लू लेता हूँ। ओके, तो ये आपका ये वाला लाइन होगा ना, तो ये भी तो आपका जो क्या हो जाएगा, ई बी सॉरी ई सी हो जाएगा, ई सी। देखो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ई, यहाँ पर सी आएगा, सी ये पॉइंट सी है ना, तो ई सी, और यहाँ पर ई सी साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम में देखो, ये ई ए कॉस थीटा और ये ई सी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज ये है उतना मैग्नीट्यूड का चार्ज ये है, दोनों इक्वल फोर्स कंपोनेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ये जो आपका वर्टिकल दोनों कंपोनेंट है। ओके, तो ये ई ए साइन थीटा और ई सी ए दोनों बराबर होंगे, तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों चार्ज ए और सी की वजह से वो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा आपका 2 ई ए साइन थीटा। अब आप पूछोगे सर ई ए कहाँ से आ गया और ई सी क्यों नहीं आया, तो ई ए और ई सी दोनों बराबर हो, क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ओके, अगर अलग मैग्नीट्यूड तो हम लोग ऐड करते, लेकिन दोनों सेम है, तो ई ए साइन थीटा इक्वल टू ई सी साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, अब देखो कहने का मतलब है, एक तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट था जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, देखो यहाँ पर हमने पता किया इसका वैल्यू, और यहाँ पर दो, अभी इन दोनों को सॉल्व कर, दोनों वेक्टर को सॉल्व कर लेंगे, तो ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो, तो उसमें से तो इसमें से ये दोनों का माइनस कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो 2 ई ए साइन थीटा, मतलब 2 इंटू ई, अब ई क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ मतलब के, और क्यू, और क्यू आपका जो है आपका, ये क्यू आपका √2 माइक्रोकूलम है, तो √2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय का ये आर स्क्वायर, आर आपका ये है। ओके, और ये हमने ऑलरेडी पता किया है, तो √2 का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, तो ये 2, तो दिस विल गिव यू 2 गेट कैंसिल, you will get 9 into 10⁻⁹ into √2 into 10⁻⁻6. Okay, so basically चलो, अच्छा ये तो हमारा हो गया, इंटू साइन थीटा भी बाकी है, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा, तब यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा बेसिकली यहाँ पर 45 होगा, 45, तो साइन 45 क्या होगा आपको 1/√2, so this will give you what, 9 into 10⁻⁹ into √2 into 10⁻⁻6 into 1/√2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू व्हाट, सो 9 into 10⁻⁹ बचाइए और 10⁻⁻6, सो दिस विल गिव यू 10⁻3, आपका ये न्यूटन पर कूलॉम, ये एक फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसमें से ये वाला माइनस कर दो, so net electric field you can calculate, so E net is equal to, तो यहाँ पर 18√2 into 10⁻³ minus 9 into 10⁻³, so solve it,
जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। आई थिंक ये आपको मिलेगा 16.38 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, ओके, आ जाएगा आपका वैल्यू। ये 18√2 और ये -9 करोगे तो 25 - 9 ये 16 कुछ आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। It is given here. So next question is, if a point charge q is placed at one corner of a cube, what is the flux linked with the cube? तो ये हमारे पास एक क्यूब है जहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। सपोज ये आपका चार्ज है, ओके। अब चार्ज में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे ऐसे चारों तरफ। अब इसको ऐसे समझो, लाइंस ऑफ फोर्स होते क्या है, कुछ क्यूब के अंदर में से पास हो जाएंगे, कुछ क्यूब के बाहर जाएंगे। अब what they are asking, if a charge, if point charge is placed at corner of a cube, what is the flux? It means how many lines of force. So in this case, Gauss theorem will help us. What is Gauss theorem? Gauss says that total flux through a closed surface, okay, and what is flux basically? So flux is nothing but E dot ds, okay. So total flux through a closed surface, अगर गॉस थ्योरम की बात करें, so integration over closed surface, important, remember this closed surface is very important, और इसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, is equal to 1/epsilon naught times total charge enclosed by that surface. So most important word to solve this problem is enclosed, ओके। एनक्लोज, इस चार्ज को हम लोग को एनक्लोज करना पड़ेगा जो कि कॉर्नर पर रखा है। तो इसको कैसे एनक्लोज, सिमेट्रिकली कैसे एनक्लोज कर सकते हैं? जब भी एक चार्ज था पॉइंट चार्ज, ओके, तो इसको हमने कैसे एनक्लोज किया था, एक स्फीयर बनाकर। पूरा इस स्फीयर में आपका चार्ज सेंटर पे आएगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गया था। तो यहाँ पर आपका जो है क्यूब है, तो आपको इतने क्यूब यूज करने का आपका जो सिमेट्रिक सिस्टम बन जाए। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पर 3 क्यूब और ऐसे नीचे लगा देता हूँ, उस साइड से और उस साइड से, और 4 क्यूब ऊपर, तो ये जो हमारा जो चार्ज क्यूब होगा ये इनक्लोज हो जाएगा और सिमेट्रिकली इनक्लोज हो जाएगा। सी यू हैव टू इनक्लोज इट, ओके, बट सिमेट्रिकल होना चाहिए, ओके, मतलब चारों तरफ सेम ये सेंटर पे आ जाए चार्ज। तो अगर आपको इस चार्ज को अगर आपको सेंटर पे लाना है तो कितने क्यूब यहाँ पर लाने पड़ेंगे, एक और क्यूब ऐसे, एक उस तरफ से, एक ये पीछे की तरफ से, तो एक ऑलरेडी ये है, 4 ये सर हो गए बेस पर, और 4 ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो। तो ये हमारा जो चार्ज है, मतलब 8 क्यूब अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 क्यूब अगर आप रखोगे तो आपका ये चार्ज है सेंटर पे आ जाएगा, और उस केस में आपका जो टोटल जो फ्लक्स होगा वो 1/8 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स अब देखो ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म लाइंस ऑफ फोर्स फ्लक्स निकालेगा। तो तो अब जितना भी टोटल लाइंस ऑफ फोर्स होगा टोटल 8 क्यूब में डिवाइड होगा। तो एक क्यूब में से कितना हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा ना। सो 1/8 क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट 1/8 हो जाएगा। सही, यही आपका आंसर है सेमेस्टर। सो फ्लक्स लिंक विद द क्यूब इज फ्लक्स linked with cube is equal to 1/8 q by epsilon naught. This is your answer. Okay. Now we'll go for next question. So our next question is, yes, linear charge density of a, छूट गया क्या, ये हो गया, okay, 1 this is done, okay, and yes, electric field in a region, question number 7. Electric field in a region is given by E is equal to -4 xi cap plus 6yj cap. The charge enclosed in the cube of side 1 meter oriented as shown in the figure diagram is given by alpha epsilon naught. Find the value of alpha.
सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये देखो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है -4xi कैप एंड +6yj कैप के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपको गॉस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, विच सेज दैट E dot ds is equal to q by epsilon naught with क्लोज इंटीग्रल साइन। तो यहाँ पर E कितना है आपका? तो बेसिकली अगर मैं इसको डिटेल में लिखूँ ये पूरा एक्सप्रेशन को, तो E आपका कितना है? ये आपका -4xi कैप +6yj कैप into ds। ओके, सो क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू q, एंड q का वैल्यू क्या दिया है? अल्फा एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। See here, the charge, see what is given here, charge enclosed in the cube of side 1 meter, 1 meter side भी दिया, oriented as shown in the diagram is given by alpha, मतलब अल्फा एप्सिलॉन ये आपका चार्ज है और अपॉन ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस -4xi कैप ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज इंटीग्रल 6yj कैप ds इज इक्वल टू अल्फा। अब ये ds क्या होगा? मीन बेसिकली x एक्सिस। अब देखो यहाँ पर मैं नाम दे दे रहा हूँ पहले, ये हमारा x एक्सिस है। सपोज ये पॉइंट A B C D, तो सरफेस एरिया ABCD जो होगा आपका ये आपका ds होगा। ओके, ds मतलब बेसिकली इसके थ्रू जो है आपको पूरा लाइन्स ऑफ फोर्स में फ्लक्स आपका जो आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा? तो एक साइड क्यूब है, ये तो 1 मीटर है, तो ये पूरा ये भी 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर आपका 1 मीटर आपका जो 1 मीटर स्क्वायर आपका जो सरफेस एरिया हो जाएगा और x आपको दिया ही है 1 मीटर। ओके, तो जब आप रखोगे वैल्यू तो दिस विल गिव यू व्हाट? -4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो ये 1 प्लस इस केस में भी ये होगा 6 y का वैल्यू 1 होगा क्योंकि क्यूब है और डायरेक्शन जे कैप तो डायरेक्शन पर्पस के लिए, और इसका भी एरिया ds। अब y वाले केस में अब मान लो मैं यहाँ पर a b इसको c दिया है, d दिया है, इसको e दे देता हूँ, इसको f दे देता हूँ। तो ये BEFC, जो BEFC है ये सरफेस ये सरफेस आपका एरिया होगा जिधर से प्लस बाहर आएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ds। तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, इक्वल टू अल्फा। सो बेसिकली टोटल सरफेस यहाँ पर बात हो रही है। सो मीन्स यहाँ पर हो जाएगा -4 + 6 इज इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये आपका अल्फा का जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू भी आ रहा है 2 आ रहा है। दिस इज व्हाट योर आंसर। ये तो पूछा था। ओके, सो विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, ये भी हो गया, एंड ये लास्ट वन। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ आर्क इज लैम्डा एंड टोटल एंगल एट द सेंटर अल्फा, ये अल्फा आपको डायग्राम में दिया हुआ है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट सेंटर। तो पोटेंशियल का हम लोग को एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, सपोज अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूँ तो k v = k q/r, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मीन्स आपको अगर जो टोटल चार्ज अगर पता करना है, वो टोटल चार्ज क्यों है, तो यहाँ पर तो बेसिकली आपका जो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। सपोज एल इज द लेंथ, आपको यहाँ पर
इसका लेंथ आपको टोटल दिया आर्क लेंथ। ओके, अच्छा नाउ व्हाट, देखो यहाँ पर ये एंगल अल्फा है, ये इसका आर का जो रेडियस आर आपको दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो चार्ज होगा उसकी वजह से इस सेंटर पर आपको पोटेंशियल पता करना है, फिर ये चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ऐसे से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस सबकी वजह से आपको पोटेंशियल पता करना है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। सपोज आई विल सिलेक्ट स्मॉल एलिमेंट डीएल, सपोज यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लेता हूँ। ओके, सो तो वहाँ पर स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, तो वहाँ पर स्मॉल एलिमेंट चार्ज डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। व्हाट इज लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बेसिकली यहाँ पर सपोज सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लो, ऐसा अज्यूम कर लो कि मेरे पास एक जो है वायर है और इस पर जो है ये 10 सेंटीमीटर का, कितना 10 सेंटीमीटर का है, और इस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने पता लगा लिया कि 1 सेंटीमीटर में 10 चार्ज हैं, सो टोटल 10 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज डेंसिटी। वही चीज़ यहाँ पर है, उसका डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर मैं 5 पे पूछूँ, अगर 5 सेंटीमीटर तो 5 10 या 50, मतलब 50 चार्ज होंगे, तो वही यहाँ पर 5 और इसके बाद जो है 10 आपका मतलब यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके, 1 सेंटीमीटर में 10 चार्ज है तो 5 सेंटीमीटर में 50 होंगे, तो ये 10 आपका लेमडा है और ये लेंथ आपका है, तो आप पूरा पता कर सकते बेसिकली यहाँ पर डी क्यू, यू कैन डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल, इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ। नाउ so therefore I can write small voltage because of this small element dq is equal to k dq by r, और यहाँ पर हम लोग को k lambda dl by r। ओके, ये हमको यहाँ पर क्या मिल गया, स्मॉल पोटेंशियल मिल गया। therefore टोटल पोटेंशियल, so capital V is equal to integration of small dv, that is what, integration of k lambda dl by r। अब देखो k तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, लैम्डा यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये भी बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर r स्क्वायर नहीं रहेगा, r रहेगा, और ये बेसिकली r डिस्टेंस, वो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, यहाँ से यहाँ तक आप मूव करोगे, अगर यहाँ पर मूव करें ये भी r ही है, रेडियस है ना, ये भी हर जगह सेम रहेगा, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा r, और इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का, और dl मतलब टोटल लेंथ अगर l है इसका, तो पूरा ऐड कर दोगे तो dl का l हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में छोटे पार्ट को ऐड करना, तो इफ यू ऐड ऑल द एलिमेंट यू विल गेट r into l। ओके, so this is what your basically इक्वेशन फॉर पोटेंशियल, और l को हम लोग ऐसे r अल्फा भी लिख सकते हैं। ओके, सो k लैम्डा अपॉन r, और l को हम लोग देखो यहाँ पर l ये जो लेंथ है r इंटू ये एंगल लिख सकते हैं। ओके, r अपॉन रेडियस। ओके, तो बेसिकली वही फॉर्मूला आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा r इंटू आर, एल की जगह पर r इंटू अल्फा, तो ये r r कैंसिल हो जाएगा, तो एक और इक्वेशन आपको k लैम्डा इंटू अल्फा, दिस इज व्हाट योर required equation, required derivation. So therefore V is potential equation लिख सकते हो, V is equal to k lambda alpha। Okay, so this was the solution। So in case any doubt you can comment और please share with your friend, उनका भी डाउट क्लियर होगा, उनको भी समझ में आएगा। ओके, और उनके साथ भी लिंक शेयर करो। ओके, and if you like this video then please subscribe। Thank you so much for watching।